Welcome to the Legit Talk Show, guys. I am Dr. Zoe, yes, and I'm back with this amazing guest again. Uh, yes, I hope you guys are doing all fine and having the best days here. But the thing I want to say is sharing people's stories just like this and you people coming live and listening to them is one of the best things that is happening to me on every Saturday or a Sunday. Not every, but sometimes. So I'm really honored to talk to this one of the best person who is into entrepreneur life. Good to see you, beautiful. Oh, good to see you, man. And I'm so happy that people like Jenish, they are going to share more stories with me, and I am so lucky to have you guys here with me while I talk to them. So I'm going to connect Jenish. He's an entrepreneur and he's a co-founder at RiffScript, and I'm so excited to know his story right now, and I hope you like the session today. I'm going to join Jenish. Hello. Hi. The first question that I would ask is, am I audible? Yes, you're audible. Oh, goodness. Okay. How are you feeling, man? Quite nervous because this is the first time I'm doing Insta Live, and that too as a guest in a show. Okay. Yeah, because you run a podcast, and how is that going on? I mean, I do run a podcast series, but I don't have to go live. So I do have ample amount of time behind the scenes. Yeah, that's right. Okay. Generally, Yeah, my guests get nervous when I put two cameras and one yeah. mic in front of them. Now it's your turn to get a Now little it's my nervous. turn. Okay, it's really nice to talk to you, man. Okay, so introduction, please. Let people know. Okay. So my name is Jaideep Soni. I run a digital marketing firm called RiffScript. We are based in Vadodara. So what happens generally is people get cheated when they are trying to get onto the internet to promote their business or to promote their Yeah. stuff. So what we wanted to do is we wanted to create a space which can find a middle ground between price point and quality of work without Yeah. cheating people. So Yeah. we wanted So to help basically, you people people grow. are saying you are not the cheaters. Yeah, obviously. I do that every Oh, day. I tell people that we are not cheaters. We are here to help. proudly. Yeah, we are here to help. Amazing, amazing work you people are doing. I want to know more about this. So, how is the journey? Tell us Uh, about the so uh, journey. it, it's quite interesting. See, what happened is when I was in 12th, till I was in 12th, I didn't have that much exposure to computers because I was studying Mm-hmm. in a school which was located in a small town, a small Okay. village. So Mm-hmm. there wasn't any computer to work around or to learn. Yeah. But after when I came in Vadodara, there was a school where we had to go to computer classes compulsory, and Yeah, I yeah. didn't know a thing about computers. And when when there was this viva going on, that teacher used to ask me a lot of questions. So I told her, you can give me marks if you want me to go through this 12th and 11th, just give me Yeah. marks whatever you like. I don't have any answers to your question. Just let me go. And then there was a twist in that story. After 2 months I was studying in HVIT, computer engineering, Okay. right? Because I before 2 months I had no exposure to computers, and then after Now two you're months I was totally into computer engineering. yeah. So the same thing happened after completing my bachelor's. Everyone in my class used to think of getting a job or something like that. But what I used to think is I मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया. Nice. तो मैंने एक मतलब पहले 6-7 महीने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना था, ऐसे ही पढ़े रहना था. ये 4 साल बहुत पढ़ाई कर ली, वैसे नहीं की थी क्योंकि इंजीनियर से तो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, बफर टाइम चाहिए था कुछ भी नहीं करने के लिए. Mm-hmm. फिर उसके बाद एक दिन बहुत सारे फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे लोग कुछ यूएस जाते हैं, कुछ कनाडा जाते हैं, कुछ अलग अलग लोग एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग चीजें. तो थोड़े फ्रेंड्स जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ट्राई कर लेते.
तो Oh. so I told my family that I will try for US because that is the only country which will throw me back after 5 years. Yeah. I didn't want Throw to you stay. I back. didn't want to get a PR. Yeah. I wanted to be thrown back. तो मैंने बोला कि एक ही कंट्री है जो मुझे वापस भेज सकती है. तो आई विल गो देयर बिकॉज माय पेरेंट्स वर क्लियर कि वो अगर मैं कोई कंट्री में जाता हूँ जहाँ पर मुझे पीआर मिलता है तो वो मेरे साथ आके नहीं रहने वाले क्योंकि उनसे उनका गांव नहीं छूटने वाला था. तो मैंने बोला कि व्हाई डू सो मच मेहनत. हाँ, तो उससे अच्छा है मैं ऐसी जगह पर चले जाऊं कि जहां मुझे वापस निकाल दे. तो So I went to United States, but I made a mistake. As I mentioned, I make a lot of mistakes. So this was one of the biggest mistake of my life. तो मैं जहाँ पर Really? गया वो जगह वो मैं जहाँ पर गया वो जगह थी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी. Okay. और वो वहाँ का राजस्थान था. तो वहां पर ऐसा हो रहा था कि वहां का वेदर कंडीशन और वहां पर जो डस्ट माइट्स थे और थोड़े जर्मन कॉकरोच बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से एलर्जीज बहुत बढ़ गई. वैसे मैं बचपन से मुझे एलर्जीज रहती है तो वहां जाके और बढ़ गई. तो आई यूज्ड टू विजिट डॉक्टर्स ऑफिस ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ. So it Oh. was it was painful, not only physically but mentally as well, because क्या होता है कि जैसे ही आप यूएस में एंटर करते हो ना आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि डॉलर से इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है. तो आपको डॉलर में पैसा कमाना है वहां जाके पढ़ाई के साथ साथ. Right. तो आपको जॉब चाहिए और यूएस में ऐसा है कि आपको ऑन कैंपस ही जॉब करना पड़ेगा. यू कांट गो ऑफ कैंपस. इट्स इलीगल. तो ऑन कैंपस जॉब में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कि बहुत सारी कंपटीशन होती है. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. तो Yes. बहुत ट्राई करने के बाद जॉब्स नहीं मिल रही थी. ऊपर से फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं थी. तो और ऊपर से सेकंड सेमेस्टर आते आते ये भी हुआ कि लोअर बैक में भी पेन स्टार्ट हो गया. तो कुछ भी बचा नहीं था अभी. Ah. तो आफ्टर सेकंड सेमेस्टर मतलब मैंने खत्म किया पढ़ाई 1 साल की. और फिर वेकेशन जो टाइम होता है वहां पर मैंने सोचा कि मैं घर वालों को सरप्राइज देता हूँ. मैं इंडिया जाता हूँ. इंडिया जाके मैं थोड़ा क्योर करूंगा अपने आप को. मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी जाऊंगा. फिजिकल हेल्थ को भी क्योर करूंगा. और फिर मैं यूनिवर्सिटी चेंज करके वहां चला जाऊंगा. It was a simple plan, and it worked till I had to go to a visa officer because ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आप यूएस से बाहर जाके यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो आपको वीजा फिर से लेना पड़ता है. तो जब मैं वीजा लेने गया फिर से तो वीजा ऑफिसर ने बोला भाग यहाँ से. तो मैंने बोला तो मैंने Oh, बोला really? तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से. Oh, बाप रे. तो फिर स्टार्ट हुआ. फिर मैं वैसे ही पढ़ा रहता था. तो मैंने सोचा क्या करता है. तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि लेट्स डू समथिंग. तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि सबसे इजीएस्ट वे क्या है अपने आप को मार्केट में टेस्ट करने के लिए. टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज. बिकॉज प्रोडक्ट के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. सर्विस में भी रिसर्च करना पड़ता है लेकिन वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. मतलब शुरू में Yes. आपको अगर काम नहीं भी मिला तो यू डोंट हैव टू लूज एनीथिंग अदर देन टाइम. और टाइम तो बहुत है अपने पास. Oh, yes. तो मैंने टाइम बहुत है. पैसे नहीं है लेकिन टाइम बहुत है. तो वैसे ही स्टार्ट किया. फिर स्टार्ट करते करते मतलब ऐसा होता है कि आई एम एन इंजीनियर. मुझे मार्केटिंग फील्ड से मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की कभी. मैंने एमबीए नहीं किया. लेकिन वो बचपन से वो होता है ना कि माय फैमिली रन्स अ बिजनेस. तो वो खून में है बिजनेस और खून में है मार्केटिंग. Yeah. राइट. थोड़ा ऊपर से थोड़ा सीखते हैं ना. आप मार्केट में धक्के खाते हो थोड़ा सीखते हो. तो सीखते सीखते करते गए तो हम चलते गए. कारवां बनता गया. वैसे वैसे Yay! मस्त. The journey is like fascinating. Yeah, it's full of ups and downs and also mistakes. तो तुमने अपने मिस्टेक से खुद से ही समझा कि भाई हम कितने पानी से बाहर निकलना है, कैसे क्या करना है. The field that we choose is not sometimes always beneficial for our future lives. है ना. तो कभी कभी ऐसी भी गलतियां हो जाती है कि हम लोग ऐसी फील्ड चूज कर लेते हैं जिसका हमको कोई बेनिफिट ही नहीं होता है. And then we say यार we have invested our time and energy in that field और वो 4 years हमने किया 5 years 4 years whatever and it is not benefiting you in your future. It's थोड़ा सा खटकता है लेकिन somehow you find a way and that is one of the best things that entrepreneurs have. क्योंकि गलतियां करके ही entrepreneur बनता है आदमी. I think so.
और इलोन मस्क एक चीज हमेशा हमेशा बोलता है कि हाई पेइंग थ्रेशोल्ड। तो जिसका पेइंग थ्रेशोल्ड हाई होगा ना, वो सब जगह, सब सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, कोई भी फील्ड में होगा, कोई भी, हाँ। तो पर्सनल लाइफ में डील कर रहा हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी डील कर रहा हो, तो अच्छे से कर पाएगा वैसा। यस, अनलेस एंड अनटिल वो रॉक बॉटम को हिट नहीं करेगा आदमी, तो उसको समझेगा कैसे कि व्हाट इज हिज पैशन, करना क्या चाहिए हम्म। एक्चुअल में, वेयर यू आर गोइंग टू गो इन योर लाइफ हाँ, फर्दर। एंड यू डोंट इवन प्लान। कौन प्लान करता है अपनी लाइफ? नोबडी मैं तो डज, कुछ भी दे नहीं जस्ट गो विद द फ्लो। मुझे कोई भी पूछेगा, मतलब अगर हमने हमने ये सेशन सिर्फ फिक्स किया हुआ था, अगर आपने बोला होता कि एक वीक के बाद करते हैं, तो वो मजा नहीं आता। तुरंत करना है एक दिन में, वी कैन डू दिस। That's the fun about it. Like living in the this moment ना, वो ज्यादा अच्छा होता है. But having a vision in the future वो entrepreneurs का एक पार्ट होता है. अगर तुम entrepreneur बन रहे हो, वो एक चैप्टर होता है तुम्हारे लाइफ में कि तुमको अगर ऐसी प्लानिंग्स करनी है, तो you should have a future first. So obviously you might have seen a future for RiffScript. So tell us about RiffScript basically. थोड़ा सा और डिटेल. ओके ओके ओके। तो पहली बात तो ये कि जो प्लानिंग वाली बात की ना, तो ऐसा होता है कि मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही रेकमेंड करूंगा, दिस इज द ओनली वे। पर मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी कोई भी चीज स्टार्ट करनी हो ना, तो स्टार्टिंग में इतना प्लानिंग नहीं करना चाहिए। जस्ट स्टार्ट, और फिर उसके बाद जैसे ही आपको अगर किसी चीज को करना ही होगा, तो आप धीरे धीरे फिगर आउट करके प्लान बन जाएगा। राइट। हर कोई चीज, क्योंकि क्या होता है कि एनालिसिस पैरालिसिस में हम वो लूप में रह जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं ना कि ये करूंगा तो वो होगा, ये नहीं करूंगा तो वो होगा, तो वो रिपीटेटिव हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि हम पहले कोई भी वी जंप इनटू थिंग्स एंड देन विल फिगर आउट। पहले खुद जाओ मॉड के अंदर, फिर फिगर आउट करो कि इससे बाहर कैसे निकले। फिर सरवाइव करो वहां अंदर जाके। तो ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि बेस हमारा ये था कि हमने बहुत कुछ ऐसी चीजें देखी कि ऐसा होता है कि अगर आप इंटरनेट पर जाके लिखेंगे कहीं पर कि आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय कंपनी, तो बहुत सारे लोग आपको फेसबुक या कहीं पर भी, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन में या फिर आपको बीट करते दिखेंगे, जहां पर लोग लिखेंगे कि आपको 1000 रुपीज में आपको वेबसाइट बना के देंगे, 2000 रुपीज में। तो क्या होता है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी बहुत चीजों में घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अल्टीमेटली दे लॉस अ लॉट ऑफ अमाउंट, राइट, अ लॉट ऑफ अमाउंट, राइट। तो उसके एक्सट्रीम ऑपोजिट ये भी रहता है कि कोई अगर मान लो कि आप डेंटिस्ट हो, तो आपको आईटी के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, राइट। तो मैं अगर आपको बेसिक वेबसाइट के लिए बोल दूं कि 50,000 रुपीज होंगे, राइट, तो आपके लिए आप तो दे दोगे क्योंकि आपके पास पैसा है, आपने दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता ना कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, राइट। तो जो काम 2000 में भी नहीं होना चाहिए, जो काम 50,000 में भी नहीं होना चाहिए, तो देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड, जहां पर मैं आपको अच्छे से सजेशन भी दूं और साथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क भी दूं। ओके, देन गिव मी अ सजेशन। मुझे अगर वेबसाइट क्रिएट करना है मेरा टॉक शो का, तो कितना लगेगा? how do you do calculative thing here? Like, ठीक है, अगर कोई आता भी है, अगर तुमको नॉर्मली पूछता है कि सी वी डोंट नो अबाउट दिस फील्ड बट वी वांट टू क्रिएट आवर ओन वेबसाइट, तो okay, so how do you calculate? Okay, I don't calculate directly. What I do is I ask questions कि exactly आपका पर्पस क्या है, कि आपको वेबसाइट को एज अ इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे आपके बारे में, ऐसे यूज करना है, उसको अपॉइंटमेंट सिस्टम की तरह बनाना है, या फिर उसको डायनेमिकली कुछ अलग उससे करना है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है। तो अलग अलग पर्पस होते हैं पहले तो, फिर उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, फिर उसके लिए सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो सब चीजें अगर आपको पता चलेगी, फिर आप मुझे अगर पैसा दो तो आपके लिए वर्थ रहता है ना, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको नॉलेज दिया, इन्फॉर्मेशन दी, फिर मैंने आपसे पैसा लिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि हाँ इस चीज का इतना होगा और आप मुझ पे ट्रस्ट करके, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप कुछ भी मुझे पे कर दो, ऐसा नहीं चलेगा ना, वो बात। राइट, दिस इज एक्चुअली नेसेसरी। कोई भी कैसा भी डिसीजन लेना हो तो पहले यू शुड बी थरो अबाउट कि हम लोग जो चीज मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं उसका परफेक्ट वैल्यू वो आगे वाला पर्सन, प्रोवाइडर जो है, वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो बेसिकली यू पीपल आर डूइंग हार्डेस्ट थिंग इन द इजीएस्ट वे, बट हार्डेस्ट थिंग तुम खुद कर रहे हो, लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है, राइट? दैट इज रियली नाइस।
लाइक Correct. थोड़ा और टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम लोग थोड़ा सा लोगों के लिए काम आसान भी हो रहा है, और बेसिकली जितना पैसा जाना चाहिए उतना ही इन्वेस्ट करो या फिर उतना ही डालो हाँ उस चीज के लिए। हाँ। तो ये नॉलेज अगर बनाने वाला खुद दे रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। बट अगर जो नहीं हम्म देता है वो अननेसेसरी पैसे ले लेता है, तो हम्म। उसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे? और उसको अगर पकड़ भी लिए तो फिर क्या करेंगे? उनके लिए काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। जो लोग आपसे मतलब बिना कुछ समझाए या बिना कुछ बताए आपसे सीधा पैसे की बात करते हैं ना, जैसे आपने कॉल किया और आपने थोड़ी हम्म। इन्फॉर्मेशन दी, वो बोल देगा कि 50,000 कुछ भी अमाउंट एक्स अमाउंट बोल दिया आपको, तो वहां पर काउंटर हाँ। क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं कि आप क्या एग्जैक्टली डिटेल्स में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। मतलब व्हाट वी यूज टू डू इज व्हाट वी डू जनरली हम्म। इज, अगर आपने मुझे बोला फिर मैं आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट भेजूंगा जहां पर मैं एक एक डिटेल आपको दूंगा ओके। कि मैं इतने पैसों में आपको इतनी सारी चीजें करके दूंगा, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहेगी, हम्म। हमारी साइड से इतनी चीजें होंगी, आपकी साइड से इतनी चीजें होंगी, और हम दो दो पार्टीज अगर अग्री करते हैं फिर हम अग्रीमेंट और सब कुछ, मतलब हम व्हाट आई बिलीव इज टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर मैं सिर्फ फोन पे या। आपका ऑर्डर लेकर आपसे आपका कुछ भी काम कर देता हूँ, और फिर क्या होता है जनरली ये भी मार्केट में होता है कि बहुत सारे लोग हम्म। आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे। एक बार आपका काम ऐसे ले लिया है, फिर वो काम कैसा भी हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपको उनकी जरूरत है तो वो हाँ। कॉल रिसीव नहीं करेंगे। राइट, तो अकाउंटेबिलिटी वहां पर राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंपनी है दुनिया में, हम हमसे ज्यादा पुरानी एक्सपीरियंस लोग बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है, अकाउंटेबिलिटी का इश्यू रहता है, और लोगों को पता भी राइट। नहीं राइट। होता। ऐसा होता है कि मान लो कि मैंने आपसे ऑर्डर लिया, फिर मैं किसी और को दे रहा हूँ, वो किसी और को दे रहा है, फिर बन हम्म। रहा है, आपको नहीं माय पता। गुडनेस। हाँ मैंने ले लिया हमको तो कुछ नहीं आपका। पता होता है यार। Yes. बाहर से सब कुछ चीजें हो रही है, अननोइंगली कुछ भी हो रहा है, मतलब एक डर रहता है थोड़ा बहुत, बट स्टिल तुम्हारे जैसे स्टार्टअप्स जो रहेंगे ना, इट विल एक्चुअली लेट पीपल लाइक अस, पीपल लाइक मी विल गो लिटिल फर्दर, थोड़ा इजी तरीके से, लाइक थोड़ा रिस्क फ्री हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने का और वेंचर्स खड़ा करने का ये अभी ट्रेंड चल रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट सेम थिंग एंड देयर इज अ बिग कंपटीशन। तो अगर तुमको चाहिए भी है तो इट शुड बी गुड, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, एंड द पर्सन टू whom you're giving that should be also a good person who is not taking extra money from you, it is actually giving you a value, right? So I really appreciate this script का काम, and I do think थैंक यू। that you are the person behind this. I am thinking like that maybe, और नहीं भी होगा तो भी I think you are a full timer in this, so really good मतलब मैं work. वही बोलने वाला था कि कस्टमर सर्विस भी नहीं 24/7, आधी रात को भी आधी रात को भी लोग मुझे कॉल करते हैं, तो आई रिसीव देयर फोन कॉल्स, और मतलब मैं टाइम लिमिट मैंने रखी ही नहीं है, एक्चुअली मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि वो लिमिट, वो लाइन नहीं रहती बीच में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, लेकिन वो नहीं, स्टार्टअप इतना भी स्टार्टअप नहीं में ऐसे स्पेस ही दे है। देना चाहिए लोगों को, यू शुड नहीं गिव ऑब्वियसली, देम अ स्पेसिफिक टाइम। पर क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टअप किया है तो आपको है ना कि ऑब्सेशन रहता है कि यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू यस। ना, तो राइट। उसकी वजह से आप वो बैलेंस नहीं कर पाते। बट नो, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क यार, लाइक आई वांट टू नो लाइक टीम कितनी है, लाइक हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली वर्किंग बिहाइंड दिस एंड हाउ द टीम We are a इज। team of, yeah, we are a team of 6 to 7 people, and ऐसा है कि सारे लोग या तो इंजीनियर्स हैं या फिर एमबीए किए हुए लोग हैं और उन सबको मतलब सबको सबके पास अलग अलग स्ट्रेंथ्स है। कोई कॉपी राइटिंग में अच्छा है, कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छा है, कोई डिजाइनिंग में अच्छा है, मतलब ग्राफिक डिजाइन हो गया, यूआई यूएक्स हो गया, तो हर एक का अपना अपना हर एक की अपनी अपनी फोटे है। एक्सपर्टीज है। या तो और सबसे अच्छी बात है कि मतलब मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है, आई आई डू बिलीव, जेन्युइनली बिलीव कि एक्सपीरियंस इज ओवररेटेड, क्योंकि यस। हाँ, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि जो एक्सपीरियंस है या जो चीजें है वही सबसे अच्छा है या फिर वही सबसे सही है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो ज्यादा अवेयर है सारी चीजों से, फ्रॉम कंपेयरिंग टू प्रीवियस जनरेशन। हम ज्यादा अवेयर है, हम ज्यादा ओपन है, और हम Yeah, ज्यादा because we ऑनेस्ट है। have been into, yeah, we have been into this changes in the generation that are happening, and we are looking, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमने पुरानी चीजें भी हैंडल की है और जो नया निकल रहा है वो भी हैंडल कर रहे हैं, so we can actually differentiate things. पहले इतना नहीं रहता था कि अरे खुद का अगर कुछ है तो फिर
जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा था कि अगर तुम तुम्हारा बिजनेस खोल रहे हो या फिर कुछ चीजें प्रोडक्ट्स तुम लोग बना रहे हो उसको बेचना है, तो देयर वाज दिस फर्स्ट थिंग जो बोला गया था कि GoDaddy पे जाओ, okay, search over there and create your own stuff and then sell it online and स्टार्टिंग में। अभी ऐसा है कि भाई तुम लोग मार्केट में जाओ तो तुमको 1000 लोग मिल जाएंगे, दे विल बी क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट और इतना ब्यूटीफुली बना सकते हैं। दोज पीपल आर लाइक अस ओनली, हमारे इतने ही होते हैं और उनको सब पता होता है। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे विल से भाई ऐसे करने जाएंगे ना तो पक्का डूबेगा, वो मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एंड दिस इज सच अ नाइस थिंग कि अगर हम लोगों ने अगर मिलके एक साथ कुछ कर भी लिया ना तो इट विल बी बिग, इट विल बी ऐसे पूरा एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट लगेगा लोगों के सामने। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम 6-7 लोग जितने भी लोग हो, तुम लोगों ने थोड़ा अच्छे से उसको बनाया, आइडियाज क्रिएट किए। एंड आई रियली वांट टू नो कि तुम लोगों ने कितने लोगों को रिप स्क्रिप्ट के थ्रू थोड़ा सा हेल्प किया है। एंड आई वांट टू नो देयर फीडबैक्स। कैन यू टेल सम फीडबैक्स फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन हु हैज तो हाँ, gotten help मतलब from you? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है पिछले मतलब जब से हमने स्टार्ट किया है कि जितने भी क्लाइंट आते हैं ना उन सबके दो ही इश्यूज होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, एक वो बहुत सारी जगहों पर पैसे खर्च कर चुके होते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, फिर वो सोचते हैं कि अभी बहुत हो गया, अभी कोई ढंग का काम करवाना है। क्योंकि जनरल ये टेंडेंसी है ह्यूमंस की, अगर हमें कोई चीज एक बंदा अगर 1000 रुपीज में बेच रहा है और कोई 100 रुपए में बेच रहा है तो हम विल पिक द 100 रुपी वन, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ इतने से हो जाएगा। फिर जब वो बिगड़ेगी चीज फिर हमें याद आएगा कि नहीं, उससे अच्छा एक बार में 1000 रुपए खर्च कर लेते तो अच्छा है। तो वो हमेशा से रहता है। तो उसकी वजह से उनको जितने भी लोगों के साथ हमने काम किया उन सबको यही रिलीफ मिलती है कि हम क्योंकि आउट ऑफ वे जाके भी सजेशन देते हैं जो काम हमारा नहीं भी है। मतलब हमारा काम ब्रांडिंग मार्केटिंग का है, लेकिन हमें लगता है कि हम आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आपको एज ए यूजर भी हम कुछ सजेशन दे सकते हैं, तो हम देते हैं ताकि आपकी चीजें बेहतर हो और आपके क्लाइंट्स और वो सब अच्छे से आए। और दूसरी टेंडेंसी ये भी होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा हम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि हमारी मेन प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि वो भी एक एसेंशियल पार्ट। अगर ये नहीं होगा, आप मार्केटिंग नहीं करोगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका ये फिजिकल दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली, क्योंकि वो कनेक्ट करेगा ना बाकी लोगों से। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि तुमने किया क्या है। राइट राइट। No, but this is actually a package kind of a thing. Like ऐसा पैकेज जिसमें starting to end कहाँ से कहाँ तक करना पड़ता है, प्रोसेस क्या होती है। And unless and until that person knows this, वो गलत चीजों में इन्वेस्ट करके पैसा ऑब्वियसली वेस्ट होता ही थोड़ा बहुत। बट आई रियली वांट कि प्रोजेक्ट्स लाइक यू पीपल हैव स्टार्टेड, ये हर जगह फैले, हर जगह मार्केट हो एंड पीपल वुड बी अंडरस्टैंडिंग मोर कि कहीं और गधे की तरह इन्वेस्ट करने से बेटर है पहले उनसे पूछताछ करो। कोई ऐसा पर्सन जो पहले पैसे पे बात ना करके स्ट्रैटेजी पे बात करे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा करेगा वो पर्सन, what service these people are going to give. So this is like one of the best things that I've come to know about the Riff script. Okay, बाकी लोगों से तो मेरी बात हुई नहीं है, but in all I think you're talking behalf of all of these people. So I feel like okay fine, मैं इतना लेने को तैयार हूँ। I do have one more thing to add about Riff script. तो हुआ ये कि जब हमने स्टार्ट किया तो फिर पैंडेमिक तो बीच में बहुत ही बड़ा इश्यू है, मतलब हमारे लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। तो फिर हमने ये सोचा दो चीजें कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजों से फैसिनेशन है। मतलब मुझे आपकी फील्ड का भी मुझे इतना जानना है और मतलब सभी फील्ड्स के लिए बारे में मुझे कुछ ना कुछ जानना है। तो क्यूरियोसिटी तो उसकी वजह से मुझे एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने का आइडिया आया। क्योंकि हर्षवर्धन ने एक बार मुझे उसने अपनी चैनल पर मुझे एज अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम तब मैंने कैमरा के सामने आके बैठ के बातें की है फॉर 60 मिनट्स। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू समथिंग। और फिर हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की कि उसके दो फायदे होंगे कि एक मतलब मेरी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो जाएगी और साथ में जितने भी गेस्ट आएंगे उनके बारे में भी लोग जानेंगे और हमारे बारे में भी लोग जानेंगे। तो विन विन, इट्स अ विन विन वन, राइट? तो उसकी वजह से अब ये हो गया है कि रिप स्क्रिप्ट के पास दो स्टार्टअप्स हैं। एक पॉडकास्ट और एक डिजिटल मार्केटिंग।
Okay, under one name there are going to be two works going on continuation में. तो I really bless you with all the good stuff that you're planning to have. I want to know कि मतलब ये सब क्रिएट करने के पीछे या फिर आगे बढ़ने के लिए लाइफ में या फिर जो भी स्टार्ट किया उसको आखिर तक फिनिश करना है, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन तो ऑब्सेशन के अलावा कुछ है नहीं. क्योंकि नाइस. क्योंकि मेरा मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन यही है, सेंस ऑफ क्रिएशन. मतलब मुझे जो भी करना होता है वो सेंस ऑफ क्रिएशन के लिए करना होता है. क्योंकि वो होता है ना कि वी डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, राइट? तो हमारे पास आइडिया नहीं है कि सेंस ऑफ क्रिएशन क्या हो सकता है. तो दैट्स व्हाई वी डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? ह्यूमंस डू ऑल दिस थिंग्स just to feel good about themselves, right? Yes. So I'm one of them. तो मुझे सेंस ऑफ क्रिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी चीज को आपको मतलब वो सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आर्ट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फील्ड हो, लेकिन आपको कुछ क्रिएट करने के लिए मतलब उसका एंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. अगर आपने कुछ क्रिएट किया, लेट्स से आपने एक सॉन्ग लिखा और आपने उसको पब्लिश किया, उसका मतलब म्यूजिक, लिरिक्स सब कुछ हो गया और आपने पब्लिश किया, तो आपको नहीं पता ना कि स्पॉटिफाई पे कितने लोग सुनेंगे. आपको आप भले ही कितना भी प्रमोट कर लो, तो वो चीज आपके हाथ में नहीं है. लेकिन दैट सेंस ऑफ क्रिएशन इज विथ यू, राइट? कि वो हमेशा क्या मैंने क्रिएट कर दिया, बाकी सब जिसको जो उसमें से दुनिया को जो लेना है ले. राइट. और दूसरा ये रहता है कि अगर आप डेली रूटीन में आप देखोगे तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने अपना घर अभी रिनोवेट करवाया, तो मेरे घर पे कारपेंटर्स और बहुत सारे लोग थे जो डेली बेसिस पर काम करते थे. तो मैंने तब ये नोटिस किया कि वो जो कारपेंटर आते थे वो भाई सुबह 8 बजे या 9 बजे आ जाते थे और रात के 10 बजे तक रहते थे, विदाउट एनी एक्सक्यूज. और वो कभी ऐसा बहाना नहीं बनाया कि आज संडे है तो मैं नहीं आऊंगा, आज मैं बीमार हूं तो मैं नहीं आऊंगा. मतलब जनरली होता नहीं था. अगर बहुत ही रेयर केसेस में वो कुछ नहीं आ पाते थे या लेट आते थे. मतलब कंपेयर टू अस जो कॉर्पोरेट में काम करते या फिर कोई भी चीज करते, जॉब या कुछ भी, तो हम बहुत बहाने बनाते. वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर प्रिविलेज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस, राइट? तो जहां जब प्रिविलेज होता है ना, तब हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं. तो ऐसे लोग जो है वो हमें हार्डवर्क करने के लिए ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि हाँ मतलब हम भी कम एक्सक्यूजेस थोड़े बना के ज्यादा काम कर सकते हैं. मेन थिंग इज नजरिया होना चाहिए. लाइक यू हैड अ पर्सपेक्टिव कि भाई मेहनत क्या होती है. तुम्हारी नजर जाती है तो तुम उस तरीके से देखते हो. बाकी लोग नहीं देखते. दे आर लाइक अरे उनका काम है यार, ये तो इसी के लिए बने हुए हैं. दे आर लाइक दैट ओनली. इनका कुछ नहीं है, मतलब इनका सिर्फ इतना ही है. They will not see problems behind that and everything. And that is the main vision that an entrepreneur should have. कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को हेल्प कैसी होगी. That should be our perspective. तो जैसे अभी मेरे पास भी कुछ experiences है. Like I have certain people around me जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं. हम लोग थोड़ा सा भी धूप में खड़े रहते हैं तो we have a problem. And will say कि भाई क्या धूप है यार, मेरे से तो होता ही नहीं है. And there are people who are normally working in that like इतना sun heat में. And I really do think that these people deserve more than us. हम क्या है घर पे बैठ के ये सब चीजें कर रहे हैं, वो लोग बाहर जाकर इतनी मेहनत कर रहे हैं. And I really appreciate your perspective towards this, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं दिखता है, जो आंखों के सामने उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है. They just think about themselves. मेरा सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, is room looking better or not, ये नहीं किया तो उन पे चिल्ला देते हैं, all of that. I don't believe in that stuff either. मैं भी सोचती हूँ कि जो farmers है, जो laborers है, जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, they spend all of the days in that. I do think that कि उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हो जो वो आगे जल्दी जा सके, and they should be paid more. हमसे हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा पैसा लगता है. I'm happy with that, but they deserve more than us. So it's a great part of inspiration that you mentioned. Such people are really countable to inspire. So tell me, what is success for you? Your definition of success? इस क्वेश्चन का आंसर जनरली मेरे पास नहीं होता, क्योंकि everybody has a definition of success, yeah. नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, आई जेन्युइनली बिलीव कि मैंने अपना काम कर दिया. और मैं ऐसा होता भी है. मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैं ऐसे पॉडकास्ट, मैंने नया एपिसोड रिलीज किया अभी, कल ही 20th एपिसोड आया हमारा, लैंग्वेज कल्चर एंड डिजाइन.
तो मैं और हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे मतलब ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी है हम लोग और वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी है। तो मैं अपने अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को भी बोलता हूँ कि आप ये एपिसोड आप देखिए या देखो सुनिए। सुनो। तो तो अगर मेरे घर वाले भी मुझे जल्दी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है राइट, तो हाउ कैन आई पुट माय द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बेस्ड ऑन पीपल्स पर्सपेक्टिव। सो दैट्स व्हाई आई डोंट राइट। पर्टिकुलरली हैव एनी डेफिनेशन, एनी फिक्स्ड डेफिनेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सेंस ऑफ क्रिएशन मेरा फुलफिल हो गया, तो कभी ना कभी तो लोग सुनने ही वाले हैं, मतलब कोई ना कोई तो दैट्स अ यूज कर सक्सेस लेगा। ऑलरेडी कि तुमने कर तो दिया है ना। नाउ इट्स ऑन हाँ पीपल व्हाट दे विल डू और हाँ व्हाट क्योंकि दे विल टेक फ्रॉम इट। हाँ क्योंकि क्या होता है कि कंसिस्टेंटली कुछ क्रिएट करना वो भी बहुत बड़ी बात। हम ऐसा यस, हमेशा ऐसा होता है कि हमारे कंसिस्टेंसी ही बहुत बड़ी बात है जो या बेसिकली नहीं हो पाती है चीज ये। जैसे जैसे राइट। आप हर संडे करते हो ना ये लेजिट या टॉक्स, या या राइट, तो कितना टफ होता होगा आपके लिए हर संडे अरे लेजिट बहुत टॉक्स के टफ लिए। होता है यार। अगर मैं इस बारे में बोलने बैठूं ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि समटाइम्स देयर आर पीपल हु वुड से डायरेक्टली नो एंड समटाइम्स दे विल से कि एक दिन पहले मना कर देते, तो फिर यार मेरी बैंड बज जाती है। मैं कहाँ से एकदम से नया पर्सन लेके आओ? इट्स अ डिफरेंट हाँ स्ट्रैटेजी। उस टाइम पे दिमाग लगाना पड़ता है, बट यू डू समहाउ, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। एंड आई बिलीव हम्म, कि वो कंसिस्टेंसी एक बार पकड़ ली ना तो वो आखिर तक इट स्टेज विद अस। सो आई होप यू फॉलो right. दैट। या ऑब्वियसली, और आपका मतलब आप मैं हम जो पॉडकास्ट सीरीज करते हैं उसके लिए हमें पहले तो कंसिस्टेंटली स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर गेस्ट को कन्विंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब जो भी रिकॉर्डिंग या शूट कर रहे हैं हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिर उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी होता है। तो ये सब चीजें करने में, रिसर्च करके सब कुछ चीजें लाने में, क्योंकि सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी तो होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि प्रोसेस में Yeah. हम खुद ही बोर हो जाए, मतलब हम भी तो बोर नहीं होने चाहिए ना। Mm-hmm. तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने काम कर दिया, बाकी एंड रिजल्ट तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं। वही। राइट राइट। बट या आई डू फील कि कंसिस्टेंटली अगर कर लिया जाए स्टार्टिंग में तो फिर वो मिडिल थोड़ा सा मैसी लगता है, लेकिन एंड काफी ब्यूटीफुल हो जाता है कंसिस्टेंसी की वजह से। बिकॉज हम चेंज हो जाते हैं, हम पंक्चुअल हो जाते हैं हम ठीक हो जाते हैं, हम प्रोडक्टिव चीजें करने लगते हैं, दिमाग चलने लगता है, और जो पुरानी चीजें वो भूल जाते हैं, नया जो चल रहा है उसमें चले जाते हैं। तो इट्स लाइक कंसिस्टेंसी कैन चेंज अ ह्यूमन बीइंग टोटली। यू जस्ट हैव टू बी देयर एट दैट मोमेंट। या सो राइट। यस, कंसिस्टेंसी आई और कैन टेक दैट। दूसरी एक चीज जो जो टिपिकली सक्सेस को मेजर करने के लिए होता है, पैसा। बाकी सब चीजें बाकी साइड पर। दैट इज अ फीडबैक। जी, पैसा मिलना इज अ या फीडबैक कि हाँ तुम कर रहे या हो ना, तो तुमको उसका फल मिल रहा है। बट जो लेकिन वो बाकी की जल्दी नहीं चीजें, मिलता, वो हाँ जल्दी नहीं नहीं मिलता। ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड पेशेंस ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, परसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है, देन पेशेंस है, ये तो चाहिए ही होता है, अदरवाइज फिर वो सक्सेस कहाँ। So yeah, it's a good thing that you are saying that you don't have a specific definition for success, but you actually know what success is, so that is enough. Okay, that is nice. So what message you would love to give to these amazing viewers who are watching you? Okay, first of all, I'd like to mention a few of my friends and my brother who are constantly commenting on this live session. Stop doing this. Stop doing this. And then to all the viewers who are going to listen to this or view this video after you post it, right? Yeah, Because live में तो इतने इतने सारे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा है ना, संडे आफ्टरनून, तो ज्यादा लोग आते नहीं, yeah, तो वो बाद nobody's में that देखते हैं। active. Yeah. हाँ राइट राइट। तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी आप, मतलब मेरे पास ज्ञान देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी अभी तो आई एम इन द मड, सो आई वोंट बी। You are a मतलब मैं newborn in बाबा this नहीं right बनूंगा। now. हाँ। मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि सेंस ऑफ क्रिएशन के लिए करो जो भी करना है, बाकी सब चीजें तो है, हो ही वो जाएगी अपने फॉलो आप। हो जाएगी उसके साथ। हाँ मतलब एक चीज है जो मेरी लाइफ का फंडा है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने खुद से बनाया हुआ है। अगर कहीं पर कोइंसिडेंटली ये मिल जाता है तो दैट्स नॉट माय इश्यू, मैंने खुद से सोचा। तो ये है कि खुद को तो ये है बचाने कि के बहुत तरीके हैं जैनिश के पास। नहीं, पर ये सच में मैंने खुद से सोचा है, मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा। आई डोंट, या आई अगर एग्री मैंने कहीं पर पढ़ा होता दैट। तो मैं क्रेडिट दे देता। तो ये है कि जैसे हम छोटे थे तो हम पजल सॉल्व करते थे,
तो जब अगर आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, आप अपने आप को भी मतलब हाइंडसाइड में देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब पजल सॉल्व करते थे तब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ी चीजें अगर सॉल्व नहीं होती तो सब बिगाड़ के चले जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा। और कोई ऐसे Right. होते हैं कि भले ही अभी नहीं हो रहा, मैं ट्राई करता रहूंगा, पीसीज अभी भले ही अरेंज नहीं हो रहे हो, लेकिन एंड तक मैं बैठा रहूंगा और फिर मैं अरेंज करके ही खड़ा रहूंगा, मतलब उसके बाद ही मैं आई पुट इट असाइड, राइट। तो लाइफ Yeah. मतलब मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ ऐसी है कि अगर आपका कुछ भी अभी बिट्स एंड पीसीज में हो रहा है ना, अगर कुछ भी अरेंज नहीं हो रहा है Right. तो डोंट, मतलब चीजें अपने आप होती जाएगी, आप That एक एक fall पीस into जोड़ते जाओगे। place. हाँ, एक एक पीस जोड़ते जाओगे और जो लास्ट पीस होगा ना, जब आप डेथ बेड पर हो तब लास्ट पीस पीस भी अरेंज हो जाएगा, तो पजल विल Yeah. गेट Ready. कंप्लीट। हाँ, Yeah. तो Right. That is टेंशन वाली बात amazing. नहीं Life is a puzzle, basically. है। या You have to search all the bits and the gaps there and just fill it up, and then it's complete. Then you're happy, satisfied. You did it. या Nice. Okay, so this is the question that I always ask to every guest that come to my show. So basically ये मेरा feedback का time है और जैसे मेरे को feedback मिलता है I work like that. So if you have any suggestion towards this talk show, please tell me, or else you can give me a good feedback that you have about the initiative that I've started. Let me Okay. know. You mentioned good feedback, right? So I have to No, provide fine. If it is a bad one also, that's what I said before. कि अगर positive. suggestions भी है या फिर कोई mistakes भी है तो you please do tell me, and if you have any Learning. uh, feedback then do tell me. Okay, so I do have one feedback. That's the only thing that I have. जो आपका फॉर्मेट है बहुत सही है, क्योंकि इसके लिए it takes a lot of guts, it takes a lot of preparation to do this live. क्योंकि यहाँ पर मतलब जैसे मैंने बोला, मेरे पास तो goof ups करने के लिए बहुत टाइम रहता है पॉडकास्ट में, और होता भी है कि जहाँ पर बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें कट होती है, मतलब उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग में भले ही टाइम लगता हो, लेकिन यहाँ पर ये करना लाइव इट्स डिफिकल्ट। तो आई अप्रिशिएट योर वर्क कि आप ऐसे ही चालू रखो, और Thanks. जो आपका फॉर्मेट है शॉर्ट एंड स्वीट वो भी बहुत अच्छा है, ताकि लोग एंगेज रहे। क्योंकि मेरा फॉर्मेट तो ऐसा है कि 50-60 मिनट्स आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सुने या ना सुने, मैं सुन रहा हूँ वैसा। तो आपका मुझे Yeah. फॉर्मेट बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छा लगा, और द क्वेश्चंस आर क्वाइट ऑन पॉइंट, तो कंटिन्यू डूइंग इट। और सजेशन तो खत्म हो गए, लेकिन आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन वन ऑफ आवर एपिसोड्स, सो विल डू दिस Wow. for I'll 60 be. minutes. Oh, that is nice. वो बोलने को बहुत टाइम है अपने पास. I'll क्योंकि speak आप, up. हाँ आप मतलब मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लेजिट टॉक्स में आप अपने आप को आप इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुद का शो है। तो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे शो पर आइए और हम ज्यादा बातें करेंगे। Wow, that is awesome. यही तो एक फायदा होता है to have a platform socially, जैसे तुम्हारे पास है मेरे पास है, तो we can like know each other's Yeah. stories and सबको बताने के लिए और अच्छा लगता है. That is nice. Okay, so one of your friend, I guess, he said कि मैडम थोड़ा सा comments भी पढ़ लो, so I will go through the comments and I'll tell you. Ash Queen is saying big fan, sir. Then खुशी अब अपना टाइम आएगा. Then there is a star boy who's saying और मुझे आपकी hair style. Oh my goodness. He said sir आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है. खुशी is saying Jay congratulations. Again खुशी Gazar is saying Jai Mata Di. Okay. Oh my goodness, there are a lot of comments and आज ये सब वेले बैठे हैं, इनको मैंने एक बार बोल दिया कि ये आज लाइव है, तो ये लोग यहीं पर, थोड़े लोग तो यहीं पर बैठे हैं बाहर के रूम में चार से। Oh really? Call them in the session. उनको भी लाइव ले लो, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कैसे हो आप. No, it's like काफी अच्छा था session and I really enjoyed talking to you. Like life of an entrepreneur is exciting to know क्योंकि कुछ भी सीधा नहीं होता है, सब आड़ा टेढ़ा इधर उधर होता है. हाँ हाँ One of the good things that you have been doing is not stopping anywhere. Like pause is fine, pause लेना जरूरी भी होता है, rest is necessary, but you didn't stop. So I will tell you that keep going and keep giving better service to people. Like
मी एंड अगर मेरे को चाहिए रहेगा तो प्लीज मैं तो बता पहले ही पूछूंगी भाई कितना हो रहा है, इतना इतना है. वो तो सबसे Can you? पहला क्वेश्चन होता ही है, सबका पहला क्वेश्चन यही होता है कि कितना होगा. No, but we'll have a discussion on this because I was thinking to have something like a platform or something. So, but I have few questions I'll ask you. Do Okay. help me in that. I would like to add one more point here. Sorry, Okay. this is not enough for me actually. I 20 can minutes see is that. not enough. Okay. I'm sure it's more than 20 minutes. You can take the time. Okay, go ahead. तो आपने जो पहले पूछा था ना कि आपने रिप स्क्रिप्ट के लिए फ्यूचर या विजन कुछ डिफाइन किया होगा, तो जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तब से हमें ये भी लग रहा है कि आर्टिस्ट इंडिविजुअल्स या क्रिएटर्स जो भी हैं, कोई भी फील्ड के हो सकते हैं, जैसे आप भी एक क्रिएटर ही हो जो आप इतने सारे सेशंस करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिले उनकी Yeah, yeah. सर्विसेज या उनके आइडियाज या उनके क्रिएशंस के लिए. तो दैट इज आवर गोल कि अभी हमने ये Wow. स्टार्ट किया है और हम वहां तक पहुंचेंगे कि जहां पर हम खुद एक प्लेटफॉर्म बनकर उन सबके लिए, जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी क्रिएटर्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, कोई भी हो जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बने, ये हमारा एम है. तो विल रीच देयर एंड टिल वी रीच देयर वी नॉट स्टॉप, Yeah. वी विल नॉट स्टॉप. Amazing. It is going to happen very soon because you people are consistent, so there is no doubt. Sense of creation. Believe that, right? Thank you so much, Janish, for coming to the show, and I really appreciate what the things that you are doing. And I'm going to post a story जो मैंने कल ही बना के रखी हुई थी. For that purpose, I asked the logo, and I hope that वो थोड़ा जल्दी market हो, लोगों को पता चले कि what is actual meaning behind having a riff script concept within you guys. So Well, really, thank you. thank you so much, Thank and you for inviting me and thank stay you for being so connected. spontaneous. Okay. Most welcome. Keep doing this. Keep doing this. Thank you so much. I will. And you have to be connected to the talk show till the end because ये भी इसको भी मुझे बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए obviously creators like you, entrepreneurs like you will be more helpful for me, right? We can जो talk तुम about लोग a lot. We can talk a lot on various topics. You can Yeah. have me as recurring guest. I don't mind. I don't mind. I am going to because I think there are few topics related to how to make things digitized, how to not stick to one place or one specific field or one specific job or something like that. There are people who are trying to get out of this 9 to 5 concept, जो उनका job होता है, but it's difficult for them to know कि basically ये छोड़ने के बाद मैं कहाँ अपना time invest करूँगा और मैं क्या करने वाला हूँ. So for that, I think your platform and my platform will be better to just guide them and tell them कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो तुम देखो अभी क्या करना है, 9 to 5 करना है या कुछ और करना है. So it will be more. वैसे हम गुलजार के बारे में भी बात कर सकते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए. Wow. I want to talk a lot, right? That's why I said. See, I have one topic also. So, see, Okay. I'll tell you that on Instagram here itself, but not now in the live session. I'll tell you what my topic is, and I hope you arrange certain things related to that. तो हम लोग please उसपे बात करेंगे because I have a lot of things to say on that. See, Okay. sorry, I would like to interrupt here. One of Okay. my the Starboy 184 is saying it's 9 to 6 and it sucks. You have to guide one of your friends now. See, he is having a problem. Guide him. Thank So, yeah, you so much, Janice. It you was had- really yeah, helpful to talk to you, and your platform is really helping to me also now because I'll be having better vision. कि भाई अब मेरे को अगर करना है तो मेरे को क्या क्या करना है. I'll ask questions to you, and I hope people, one of like the people who are following me or the people who are your followers, will come to know what actual Janish is doing. तो वो तुम्हें directly messages करेंगे कि भाई अब मेरे को बता, अब तेरी story पता चल गई है, तब तू बता कैसा करना है, क्या करना है. So do help them, okay? And free में advices दो, free I'm में here to suggestions help. दो, help I'm here to freely. Yeah. Yeah, obviously. पैसे नहीं लेना. help. नहीं. अपना काम करो बस. Right? Yeah. Thank you so much, Jenny, for coming to the talk show. See you next time. So, yeah. See you. Oh! Mine is this. See you. Bye.
Thank you so much, guys. It was really happening and also informative session, and you were sticking up for such a long time. And I really hope the story and the venture that he has started, the project that he was talking about, has helped you some or the other way. And if you have any questions, you can directly text him. And I'm going to post one story where it will be giving a brief introduction about their venture and what services they're actually providing. So it will be helpful for you guys. Thank you so much for sticking up like this. And I'm going to come next Saturday or Sunday with another story. And I hope you'll enjoy that again. Thank you so much, guys. Bye. Namaste.